So, good evening, students. Good evening, sir. Okay. Board clear है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So today we're going to start this transistor. So all of you know that there are two types of transistors. Okay. One is BJT. Okay. BJTs, and there is a one FET. Okay. So BJT is bipolar junction transistor. Okay. While your FET is field effect transistor. Okay. Field effect transistor. Okay. So what is the difference between these two transistors? Okay. So first of all, okay, your BJT bipolar, हाँ सर वो प्रीवियस डे का जो होमवर्क है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है. अरे चलो वो संडे को देना, संडे को भी क्लास रख रहे हैं ना, तो उसमें जितने भी डाउट ले आना. ठीक है, तो संडे को क्लास भी कर लेंगे और आधा घंटा डाउट भी दे देंगे. सारे डाउट संडे को ले आना. ओके. सो दिस इज, या फिर जल्दी हो तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना आज ही. ठीक है. सो बीजेटी, ओके, बीजेटी मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो डिफरेंस क्या है? दिस इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस. Okay, while this is the electric field control device. Electric field control device. Okay, so and the term bipolar means, okay, the operation of BJT depends. Okay, the operation depends on both majority as well as minority charge carriers. Okay, so in order to explain the operation, okay, we need both. Okay, holes and electron both. Okay, both majority and minority charge carriers are needed to explain the operation. Okay, while in the case of FET, okay, the electric field, okay, controls only majority charge carriers in channel. That's why these are unipolar devices. Unipolar मतलब एक ही तरह के charge carriers हैं, unipolar, and this is your bipolar. So this is the basic difference. Okay, one is current control, okay, and other is electric field control. Okay, now if you see, ये रख कर दो. Yes, sir. Okay. Now if I draw the structure of BJT, okay, so BJT structure, okay, so what is BJT structure? So when you sandwich a N type of semiconductor, okay, between two P type of semiconductors, okay, then this is called your PNP transistor. Sandwich का मतलब है you grow, first आपका P है, okay, you grow P, then you grow N layer on top of the P layer, and then again you grow P layer on the top of the N layer. Okay, basically एक ही single crystals में impurity डाल के they form these transistors. ऐसा नहीं कि ला के जोड़ देते हैं.
Okay, they grow. Okay, since a same crystal, they grow p-n and p layers. Okay, by varying the dopings. Okay, so in PNP transistor, and there is one more, and if you sandwich a p layer between two n layers, that is called your NPN transistor. Okay, so this is a 3-terminal device. Okay, one terminal is called emitter, second is base, and one is collector. Okay, so this is your emitter, base, and collector. Now, what is the difference between emitter region? Okay, this is called your emitter region. This is the collector region. This is your base region. Okay, this is your emitter region. Emitter region. Okay, so since emitter has to supply the charge carriers, okay, it has to give the charge carriers to the device. Okay, so doping of emitter is very high. Okay, so your emitter junction, emitter region is highly doped. Okay, that means connectivity zyada hai. Okay, similarly, if you see your base is very thin. Base is very thin. Size is around 25 micrometers and very lightly doped. Lightly doped means its resistance zyada hai. Lightly doped and very thin. And your collector, okay, the collector region your doping hai. Collector region is moderately doped. Okay, moderately or a moderate doping. Okay, in between base and emitter. And the cross section area, ye thin hai. Cross section area of collector. Okay, cross section area, because it has to collect the all charge carriers. Cross section area of collector is greater than your emitter area. Cross section area of collector is greater than emitter cross section. Okay, then emitter. So this is the fundamental structure. Now, what is the reason that we are making this P is very small? Okay, the base region is very thin. If this base region is not thin, what will happen? If this base region is not very thin, in that case they are equivalent to two diodes. Okay, so nothing new devices. You are just connecting two diodes. So since this base is very small, so there is a probability there. So that's why we have chances to inject all the charges by supplying bias. We can supply, we can send all the charges from P to N. Okay, we can transfer current simply go from, because it's a bit thin. Okay, so current, without any loss, current can go from P to N. Okay, this emitter region to collector region. Okay, so that is the basic operation fundamental of this device. Okay, that is base region is very small. If you make base region wider, then all the carriers you are sending here, that will all recombine here. So there will no transfer from input to output. Okay, this is the main fundamental operation design which makes transistor so useful. Okay, now in transistor we have two junctions. One is this emitter base junction. One is called emitter base junction. Okay, two junction. One is called emitter base junction. Okay, and second is your collector base junction. Collector base junction. Now, since there are two junctions, okay. Now, in order to if you want to operate this transistor, okay, we need to provide some biasing. Okay, biasing means we have to apply some voltages. So, because there are two emitters, two junctions, okay, there are four kinds of biasing we can apply on a transistor. Okay, so what is this four kind of biasing?
So this is my ammeter base junction. Okay, so I call it EB junction. Okay, EB junction. Okay, and one is collector base. Okay, CB junction. So, and this is serial number. So I can apply what? I can make forward bias. I can make EB junction as these two junctions. I can make it forward bias. Okay, forward bias, and I can make it reverse bias. Okay, reverse bias. That means this is first is got FR, forward reverse biasing. Okay, now what I can do, I can make it forward bias. I can make CB junction also forward bias. This is called your second number, FF biasing. Okay, and now I can also make it this one as a forward bias, reverse bias. Okay, and this I can make as a forward bias. This is fourth. Okay, so I make reverse bias, and reverse bias, and the last one is here reverse bias And forward bias. and that is forward bias. Okay, so this is called your RR biasing, and this is called your RF biasing. Okay, so any question? So now Ji? No sir, कोई question नहीं. So now what is the difference between these biasing? Okay, so if you are applying this forward reverse biasing, okay, your operation region, okay, operation region, that will be active. Your transistor will work in active region. Okay, so if you are applying forward, then your transistor will work on saturation region. Okay, similarly if you apply both reverse, then your transistor work in cutoff region. Okay, ये important is a biasing याद रखना. Okay, exam में question आते हैं numerical इस पे. And then this is reverse forward bias. Okay, so this will also, ये क्या करेगा? Okay, this is like similar to your FR. Okay, इसमें just क्या हो गया, उल्टा हो गया. अब कि आपका जो कलेक्टर हो गया, वो अमीटर बन गया. ओके, कलेक्टर हो गया वो अमीटर बन गया, और अमीटर है वो आपका कलेक्टर बन गया. ओके, सो बट क्योंकि आपका कलेक्टर बहुत लाइटली डोप्ड है, दिस टाइप ऑफ जनरली वी डोंट यूज. ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर इनवर्स ऑपरेशन, उल्टा ऑपरेशन. इट्स कॉल्ड योर इनवर्स ऑपरेशन. ओके, नाउ when your transistor you're applying forward bias FR biasing. Okay, your transistor is working in active region. Okay, और इसका यूज कहाँ होता है? एम्पलीफायर सर्किट में. when you want to use your transistor as amplifier, okay, then you use this forward reverse biasing, FR biasing to your junction. Okay, now active region का मतलब क्या होता है? एक्टिव रीजन का मतलब होता है क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो एक्टिव रीजन का मतलब सर मेरा कनेक्शन चला गया था. सर कैन यू जस्ट समराइज, मतलब 2 मिनट में. Okay, so we have two junctions, ammeter base junction and we have collector base junction. Okay, so we have two junctions. So two junction we can apply 4 kind of biasing. Okay, forward reverse, reverse forwards. Okay, 4 kind of biasing we can apply. Okay, so when you apply forward biasing, your transistor will work in active region, forward will work in saturation, and reverse it will work on as a cutoff region. Okay, and RF is just inverse of FR, which is not useful. Okay, so if you want to make your transistor work in biasing, it will act as an amplifier. Okay, if you want to work in forward, then this will work a transistor is a switch on, and RR is switch off. Okay, so these both type of configurations biasing are used in switching circuits. Okay,
So if you want to make your transistor, want to work your transistor, make as a switch. Okay, you want to make on switch, then you make forward. You want to just work transistor as a switch off, then you apply reverse biasing. Okay, and this fourth one is rarely used. Okay, this is rarely used. You say we don't use, okay, because this is inverse, so that's one. Okay, so there's nothing new thing. Now, okay, now we see what is the current equation for this transistor, how transistor work, or we'll see the operation. Okay, वो आपने last में क्या लिखा है इसमें? this is rarely used. Okay, जैसे rarely use में उसका क्या use है? मतलब इसको यूज करते नहीं है जनरली, ठीक है। अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो इसका यूज एक्चुअली करते नहीं है, क्योंकि जस्ट इनवर्स है। इनवर्स है मतलब इसने आपने इसको मीटर बना दिया कलेक्टर को, और उसका डोपिंग तो कम ही है, तो वो काम तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन अभी भी याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा इसका जो भी होगा, ठीक है, कहीं यूज हुआ होगा तो आगे तो करेंगे, 1 by 1 सब करेंगे ना, तो आगे याद आगे बता देंगे। ठीक है सर, एक्टिव रीजन का डोपिंग हाई है कलेक्टर के? नहीं, एक्टिव रीजन ये जो रीजन बोलते हैं, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का रीजन है। ठीक है, एक्टिव रीजन का मतलब है कि आपकी जो आउटपुट, मेरा क्वेश्चन गलत है, मतलब वो एमिटर रीजन, एमिटर रीजन सर हेवीली डोप्ड क्यों सर है? हेवीली डोप्ड है ना, क्योंकि वो चार्ज सप्लाई करेगा, कैरियर सप्लाई करेगा, इंजेक्ट करेगा पूरे सर्किट में, तो जो ट्रांजिस्टर में, तो उसको हेवीली डोप्ड बनाते हैं, क्योंकि वो चार्ज को इंजेक्ट करेरेगा। और सर कलेक्टर ये सब कलेक्टर क्या चार्ज, जो भी चार्ज है उसको कलेक्ट कर रहेगा। ठीक है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थोड़ा इससे बड़ा होता है। ठीक है, ताकि सारे चार्ज को, जितने भी चार्ज है उसको इफेक्टिवली, क्रॉस सेक्शन एरिया जितने भी चार्ज आता है उसको इफेक्टिवली वो उसको कैप्चर कर ले। ठीक है, और क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो पावर डिसिपेशन भी ज्यादा होगा। ओके, फाइनली हमारा जो यूज है ट्रांजिस्टर का वो एज एम्पलीफायर है। ओके, तो हमारा पर्पज ये है कि इधर के सर्किट को हम लोग ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बनाए, ताकि यहाँ लो रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस हो, करंट ऑलमोस्ट सेम होगा, तो यहाँ पे हमको क्या है, वोल्टेज गेन मिल जाएगा। ओके, करंट सेम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पर, तो हमको फाइनली क्या हो जाएगा, VIR, हमको हमको सिग्नल का एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा। मेन यूज सर्किट इसका ट्रांजिस्टर का जो होता है वो ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर में होता है। ओके, सो सर ये एरिया लार्ज होने के लिए ये रेजिस्टेंस ज्यादा है? नहीं, एरिया लार्ज करने के लिए ऐसा नहीं करते, एरिया का तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। ओके, वो तो जब हम इसको रिवर्स वाइज लगाएंगे, ठीक है, तो इफेक्टली एरिया ज्यादा है, तो रिवर्स वाइज भी लगने से रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, एरिया तो खाली इसका जो कैप्चर करने के लिए है, सब कुछ जो भी जितना भी आ रहा है उसको कैप्चर करने के लिए। और सर डोपिंग के साथ एरिया का कोई रिलेशन है? नहीं, मतलब नहीं, एरिया तो आपको सिंपल क्रिस्टल है आपका। ठीक है, डोपिंग अगर ज्यादा होगी तो आपको सैंपल कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी, डोपिंग कम है तो उसका कनेक्टिविटी कम रहेगा बस। ठीक है, इसका डोपिंग इसके कंपैरिजन में कम रहता ही है, तभी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है मीटर कंपैरिजन में पी का। ठीक है, ठीक है, तो एक्टिव रीजन, ये सैचुरेशन, ये सब क्या है सर? ये बताएंगे ना, मतलब इसका क्या मतलब होता है? वो बता रहा था वही बीच में। आउटपुट आपका इनपुट करंट पे लार्जली डिपेंड करेगा। ठीक है, सैचुरेशन में थोड़ा डिपेंड, जो आउटपुट करंट है उसका इनपुट पे डिपेंडेंस थोड़ा कम हो जाता है। कट ऑफ रीजन का मतलब है कि आपका जो इनपुट करंट ही 0 है। ओके, तो आपको जो भी करंट, जो भी करंट फ्लो होगा वो उसे रिवर्स बायस में रीजन में होगा, और रिवर्स बायस में आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा, और रिवर्स सैचुरेशन करंट आपको पता है ये बहुत नेग्लिजिबल होता है। ओके, दैट मींस वो क्या है, 0 करंट है, दैट मींस आपका स्विच ऑफ है। ओके, दैट इज, वी विल डिस्कस दैट वन जब ड्रॉ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो नाउ NPN, so now what is the operation, how it works? Okay, NPN, okay, and we have here, we can draw here, so slightly away, PNP.
Okay. So what we'll do, I'm applying forward bias because we are mainly we have to deal with this FR biasing. Okay, so I'm trying to explain this forward reverse biasing, FR biasing. Okay, so this is my base, this is emitter, this is collector. So I'm making base as a component because the 3-terminal device we have to make at least one terminal as a common. Okay, so this will become our common base configuration, Okay, if you want you can apply separately. That is in order to understand operation we can apply separate batteries. Okay, but we have to finally use this one, so I'm making it common. Okay, so this is my VEB because my base is common. I'm applying voltage to emitter. Okay, this is my emitter, this is my emitter, base, collector. Okay, so base is common, so I'm applying with voltage to emitter with respect to base. Okay, so this is VEB. Okay, similarly this is forward bias. Now forward, if I don't make forward bias, then I have to make this minus and this I have to make positive. Okay, similarly here if I want to make it reverse bias, okay, so this become my reverse bias. Okay, and with positive and P with negative, so this become now our VCB. Okay, this is VCB. So this is my NPN transistor. Similarly, if I want to make for this PNP transistor, so this will be forward bias. Okay, and this will be my reverse bias. So this is plus minus. Same, this is VEB. Okay, and this is VCB. So this is my junction. Now what happens when I apply forward bias? Okay, so forward bias apply करने से क्या होता है? क्या होगा forward bias apply करने से? First of all, see in PN junction. So if you apply forward bias, what will happen? My deflection width will reduce. Okay, so I told you when we are making PN junction. Okay, so उसमें there will be diffusion of current. Okay, from majority charge carriers will flow. Okay, from P it will holes will flow towards N side, and from N electron will flow towards P side. Okay, and what will happen at the interface? You will get this positively charged carrier ions. Okay, dopant or acceptor ions, and electric field generated. Until the electric field do not stop this diffusion of charges. Okay, this charge will be keep on flowing, and at particular stage this flow of charge cancels. Okay, so because this drift and diffusion part can सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो. Okay, so what I'm saying, okay, whenever we apply forward bias, okay, so forward bias apply करने से क्या होगा कि आपकी जो depletion width change हो जाएगी. Okay, so what will happen again? There will be diffusion of charges, okay, towards P to E. Okay, now you're supplying, you're reducing the barriers. Okay, so what will happen? Current will flow because this is P, so current will flow this side, and your electron flow will be this side. Okay, this is your positive conventional current, and this is your electrons. Okay, so electron will flow like this. Okay, now since this region is very small, so whatever current we are applying here, okay, suppose this is a current IE, emitter current. Okay, because of diffusion of holes. Okay, so almost all the current will reach to this P region. Okay, say alpha I. Okay, fraction of this current will reach. Okay, and a smaller portion, only 1 minus alpha. Okay, that will recombine here because these are major charge carriers. Okay, and this will be small, so all the charges will come और बीच में वो क्या रिकम्बाइन होंगे. ओके, और उसमें से जितने बाकी बचेंगे. वीडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही. क्या क्लियर नहीं आ रहा सर? ठीक है सर क्लियर है सर वो. हाँ, ओके. सो अभी हम ये सर्किट देख रहे हैं. ओके, सो जैसे ही हम लोग करंट फ्लो करेंगे, ओके, तो जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ होल्स है वो यहाँ पहुंच जाएंगे. ठीक है, एंड दैट दे विल फॉल, दे विल फॉर्म IC. ओके, so this is my IC, this is my IC, this will form IC. okay, अब कुछ इसमें से क्या होगा, N से भी P में जाएंगे, that will also be part of IE, but क्योंकि उनका फ्रैक्शन बहुत कम होता है, ओके, कंपेयर टू P के, क्योंकि हेवी डोप्ड है, तो उसको हम नेग्लिजिबल करते हैं. तो I is mainly basically होल करंट. ओके,
होल के कारण डिफ्यूजन कारण जो करंट हो रहा है दैट इज एंड इट विल फॉर्म योर आईसी। ओके, और जो यहाँ बच के रिकम्बाइन हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं, ओके, दैट विल फॉर्म योर आईबी। ओके, सर इसमें डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होता है। Just give me 1 minute. This is my whole current. Okay, so my electrons are flowing in this direction, so IB will come down. Okay, so my IB will come down. हाँ, अब बोलो। जैसे ही ये P2 P रीजन में जाएंगे तो सर डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होगा। नहीं, हाँ, डिफ्यूजन क्या, हम अप्लाई कर रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, दिस चार्ज फ्लो इज क्रिएटिंग आई। ओके, जितने 100 होल्स बज रहे हैं उसमें से 2 लॉस हो जा रहे हैं, यहाँ पे 98 यहाँ पहुंच जा रहे हैं। ओके, और ये हमको करंट सर्किट में मिल जा रहा है, हम आई यहाँ से जा रहा है, आईसी हमको यहाँ मिल रहा है, बाकी बचा हुआ जो इन दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ पे आ जा रहा है हमारा आईबी। ओके, सो दिस इज योर। हाँ सर, इन फर्स्ट पी से इन इलेक्ट्रॉन जाएगा, इन से पी रीजन तो रिवर्स बायस है, हाँ, उसका तो डिप्लीशन वही तो देख रहे हैं, बता रहे ना। तो अभी फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि आपके ये होल्स यहाँ से गए, इंजेक्ट हुए, ठीक है। अब जैसे ही होल्स यहाँ पे इंजेक्ट है, यहाँ पे रिवर्स बायस है, ये क्या कर लेगा, इन होल्स को स्वेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो लगाया है, कलेक्टर है, जो भी आ रहा है उसको ये तो इंजेक्ट कर रहा है। ओके, ये जो है आपका इंजेक्ट कर रहा है, और ये क्या है आपका, उनको कलेक्ट कर रहा है। ओके, कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे रिवर्स बायस लगाया है। ओके, तो ये क्या करेगा, उनको कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो एक तो ये चार्जेस जो डिफ्यूजन होकर आ रहे हैं वो हमारे पास कलेक्ट हो गए। उसके अलावा भी अगर सपोज मैं यहाँ पर 0 लगा दूं, यहाँ से कोई आई 0 है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर है। अगर मैं इसको वी भी 0 कर दूंगा तो आई तो फ्लो करेगा नहीं, फिर भी यहाँ पर रिवर्स बायस है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट तो फ्लो होगा ना। हाँ सर। ओके, वो तो उसका बेसिकली वो IE और IC का डिफरेंस ही रहेगा ना। नहीं, अभी तो वो क्यों होगा, वो तो एकदम अलग है ना। अभी यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको अलग बना दूंगा, अभी मैंने एक ही बना दिया, आपको इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इसको अलग से सप्लाई कर रहा हूँ, इसको अलग से सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने 0 कर दिया, इसको मैं सप्लाई कर ही नहीं रहा हूँ, खाली इसी जंक्शन को सप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे तो कोई ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, इधर आ ही नहीं रहा है। ओके, तो जो यहाँ पर बहेगा दैट विल बी माय व्हाट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, और रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, तो इसको ऐसा देख लो, मेरा यहाँ से आई आ रहा है, ओके, उसमें से अल्फा आई फ्रैक्शन मेरा इधर चला जा रहा है, ठीक है, ये अल्फा आई, और उसमें जो बचा हुआ 1 माइनस अल्फा आई है, ओके, वो मेरा बेस करंट बना रहा है, प्लस यहाँ पर इस सर्किट में रिवर्स बायस में मेरा रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO, क्योंकि बेस कॉमन है तो मैं इसको लिखता हूँ ICO की जगह, रिवर्स सैचुरेशन करंट की जगह ICBO, ये करंट भी फ्लो कर रहा है। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट द इक्वेशंस। ओके, सो दिस टू करंट, ये करंट और ये करंट, दैट टुगेदर विल फॉर्म योर मेक योर IC। ओके, एंड सिमिलरली these two current, the sum of these two currents will form your IB। क्लियर है सर? ये फॉरवर्ड में यू हैव टोल्ड कि P से N पे, मतलब लेफ्ट वाले P से N पे जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, P से N पे जाएगा, ठीक है। अब जो राइट में P है उसमें कलेक्शन भी हो रहा है। हाँ, तो यहाँ रिवर्स बायस है ना। हाँ सर, तो उससे ये IC वाला टर्म आया, ICL टर्म और आया। हाँ, और फिर रिवर्स बायस के कारण करंट फ्लो हो रहा है। रिवर्स बायस करंट होता है, माइनॉरिटी चार्ज करंट होता है। तो हम इस जंक्शन पे हम वो भी लगा रहे हैं, रिवर्स बायस भी लगा रहे हैं, तो उसमें एक तो वो भी फ्लो करेगा, ठीक है ना। ICBO आ हाँ, रहा है उसके तो कुल कारण। मिला के मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो IC है वो IC के 2 पार्ट हैं, एक तो IE से आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ IE, दैट विल फ्रॉम IC प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, तो दीज 2 पार्ट विल फॉर्म योर IC। ओके, सपोज मुझे IC लिखना है तो मेरा IC का इक्वेशन क्या हो जाएगा, IC विल बी अल्फा E, ओके, प्लस क्या, रिवर्स सैचुरेशन करंट ICO और ICO। This is your first equation, okay? And what other thing I can write?
IB. And since ICBO is negligible, okay, so we can write my IC is almost equal to alpha E. Okay, this is my IC equation. Say this. So this is ICBO is negligible because it is reverse, right? This is microamperes ना? Yes sir. Reverse bias में जो करंट होता है वो माइक्रोएम्पेयर्स में होता है, जबकि वो करंट मिली एम्पेयर्स में होता है. So that is खत्म भी हो जाता है. Negligible, okay, compared to IE. Okay, so I can write IC equal to alpha E. Now suppose I want to write equation for IB. So I can use this graph. What is IB? IC plus IE. इस ग्राफ में बताओ ना, बताया अभी अल्फा ई में से अल्फा फ्रैक्शन इधर आ गया, 1 माइनस अल्फा इधर आ गया, 1 minus alpha into I. यस 1 अल्फा आई माइनस, क्योंकि आई बी नीचे आ रहा है, आईसी भी ऊपर जा रहा है, माइनस ICBO. Okay, so this is now my equation for base current. Okay, so this is, you can write equation number 2. Okay, now add equation 1 and 2. So if I add IB plus IC, that will give me IE. Okay, so this is equation 3. Okay, so all these 3 equations, okay, these are called fundamental current equation, fundamental equations, okay, of transistor. Okay, fundamental current equations for transistor of transistor. And these equations, what I will written, okay, that are applicable to PNP. मैंने PNP लिखा है, but it is valid for NPN also. Okay, जैसे मैंने यहाँ पे explain किया, you can similarly you can explain this one. Okay, and you can write for an NPN also. Okay, NPN में क्या है, बस खाली अभी के पहले क्या होल इंजेक्ट हो रहे थे, अभी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं. ओके, अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा तो आई इधर हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा. ठीक है, IC इधर हो जाएगा, IB अभी यहाँ से होल ये फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर हो गया, उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इसका करंट IB ऊपर हो गया. ओके, हमेशा जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो के अगेंस्ट होगा. तो दिस इज योर, खाली इतना डिफरेंस है, बाकी ये सब सेम आएगा. एंड दीज 3 इक्वेशंस, ओके, these are valid for both type of transistor, NPN and PNP. Okay, now तो बेस हमेशा बीच वाला होता है ना, मतलब PNP में बेस N होगा. जो बीच का होता है, नीचे वाला नहीं, जो बीच का होता है वो बेस होता है. ठीक है, ओके सर, जो बीच में होगा. ठीक है, नाउ ये रब कर दूं. Yes sir. ओके, अभी किसी को डाउट है इसमें, यहाँ तक भी पढ़ाया जो? नो सर. NPN वाला. नो सर. वरुण बोलो. ये सर NPN वाला मुझे थोड़ा सा एनपीएन भी सेम ही है ना भाई. यहाँ पे क्या है, बस आपकी यहाँ पे क्या करो, इसको फॉरवर्ड बायस करो, इसको अभी फॉरवर्ड बायस करना है और कर दिया ऑलरेडी, तो आपकी क्या, ये इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगा. ठीक है जी सर, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है सर्किट में. ठीक है, तो ये आपका आई इधर हो जाएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो. सिमिलरली तो आई इधर, तो IC भी इधर हो जाएगा, और आई ऊपर हो जाएगा. बस यही फर्क है, बाकी तो वो सेम ही है सब कुछ. ठीक है, अभी यहाँ पर अगर तुम ये फ्लो करना चाहते हो, ICBO वो इधर हो जाएगा, ICBO. ओके, वो हमेशा उसके IB का अपोजिट ही है, IB ऐसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है. बाकी इक्वेशन तो सेम ही है जो करना है. ठीक है, क्लियर? Yes sir. Now what we have written equations for IC, IE. IC is what? Alpha IE plus ICBO. Okay, and second equation we have written for what? IC, no, IB. So IB is what? 1 minus alpha IE minus ICBO. Okay,
So now I want to write here equation for IC. IC को लिख दिया मैंने. Now I want relation between. Okay, if ICBO is negligible. Okay, ICBO is negligible. Then alpha is similarly almost equal to IC by IE. Okay, so this is your current gain factor. Current gain factor in कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CB कॉन्फ़िगरेशन. ओके, करंट गेन का मतलब क्या है? गेन का मतलब क्या है? आपने जितना करंट दिया कितना मिला. ओके, सो आउटपुट टू इनपुट करंट का रेशियो, इसको बोलते हैं करंट गेन फैक्टर. ओके, अब वो 1 है या 1, ये तो अब इसमें तो ये 1 से कम ही है. ओके, क्योंकि आपका आई आईसी से बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 0.998 का आसपास होता है. 0.98. ओके, 0.98 और 0.99 almost equal to 1. The alpha is always less than 1. हाँ, okay, almost equal to 1 or less than 1. Okay, so this is your I. Okay, now this alpha gives relation between IC and IE. Okay, I want relation between now with an IC and IB. I want relation between IC and IB. Okay, so what I'll do, I will eliminate this IE from equation, this equation. So from this equation I can write my IE, okay, is IC minus ICBO, okay, upon alpha. अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो तो क्या आ रहा देखो. So if you write IB will be 1 minus alpha. Okay, this will give you IC minus ICBO upon alpha minus ICBO. Okay, so solve this one. क्या आएगा सॉल्व करने से? करके बताओ, सॉल्व करके बताओ. Am I doing right? Okay, say IC equal to I equal to IC minus IC upon alpha. ठीक है, अल्फा तो IB equal to 1 minus alpha. ठीक है, तो IB equal to 1 minus alpha upon alpha IC. Okay, and this is my minus 1 minus alpha ICBO minus ICBO. Okay, so IB, this is called your beta. Okay, 1 minus alpha upon alpha. Okay, that is called your beta. Okay, so this is beta and this is current gain factor in common ammeter junctions. Okay, this is the, we'll see this now, common ammeter also. So this is current gain factor. Okay, in common ammeter configuration. Okay, so this become a beta IC. Okay, so if I take ICBO common, okay, so if I take ICBO common, then put 1 minus alpha. गलत कैसा आ रहा है मेरा कैलकुलेशन? तो कैसा आ रहा है? Am I doing something wrong? सर बीटा IC minus ICBO. मैंने इक्वेशन में कुछ गड़बड़ किया क्या? मैंने यहाँ से अल्फा ई की वैल्यू निकाल दी. ओके, अल्फा ई की वैल्यू मैं निकाल दी. सो गलत इक्वेशन में पुट कर रहे हैं क्या? आईसी की इक्वेशन चाहिए मेरे को. आईसी नहीं, इसको आईबी में क्यों कर रहा है? हमको आईसी की इक्वेशन चाहिए ना, हमको चाहिए आईसी में रिलेशन चाहिए, तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ. ठीक है, सॉरी. सो मुझे चाहिए यहाँ से चाहिए आई, क्योंकि मुझे वहां जाना है. तो आई चाहिए मुझे आई बी, ओके, प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा. इसको पुट करो इस इक्वेशन में आईसी में, तो क्या आ रहा है? 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं.
तो फाइनल जो मुझे इक्वेशन चाहिए, आई सी दैट आई वांट, ओके, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा सर बीटा आई बी IB प्लस आई सी इनटू 1 प्लस बीटा ICBO 1 माइनस अल्फा। ये आ रहा है इक्वेशन, ये इक्वेशन आ रहा है क्या? देखो आ तो जाएगा भी, यहां से रख दिया मैंने IC, ओके, तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा तो है ही, ओके, और IB आ ही गया आपका, ठीक है, यस सर। और प्लस ये क्या, यहाँ से क्या आ जाएगा? सर आपने आईसीबीओ को इग्नोर कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया मतलब। नहीं नहीं, नेगलेक्ट नहीं किया है, नेगलेक्ट कहाँ किया है, ठीक है। तो नाउ ICBO 1 माइनस अल्फा भी तो आएगा ना, तो ये अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं आएगा, 1 माइनस अल्फा ICBO ओके सही है, और प्लस ICBO, क्या मिस्टेक हो रहा है सर? ये तो 1 बाय बीटा बन। सर एक क्वेश्चन तो सही है सर, क्वेश्चन सही है ये। क्वेश्चन ये आपका आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है ये? हाँ सर ये क्वेश्चन ठीक है, चलो इसको करो, मेरा क्वेश्चन पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, समझ में, मुझे राइटिंग कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। दिस इज IC, ओके, एंड दिस इज IC, एंड दिस इज योर बीटा IB, and this is your, if you take relation, this will become your beta plus ICBO. So this is your relation between IC and IB, okay. Now since you know ICBO negligible, ICBO is negligible, okay, so I can write my IC equal to beta IB, okay. So what is my aim? Okay, I have already defined my alpha. Alpha was what? IC upon IE, that is current gain in common base, okay. And now beta is your IC upon IB, this is your current gain in your common ammeter configuration, okay. And since IB is very less compared to IC, okay, so this IC values varies from this 100 to 500, okay, beta value, और इसी मतलब कंपैरेटिवली बी के कंपेरिजन में दिस इज वेरी हाई, ओके। जैसे ये तो है ना ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 था, 0.9899, दिस विल गो अराउंड 50, 100, 500, इस तरह से जाता है। यहाँ तक क्लियर है? नहीं चले आगे चले? यस सर। ओके, सो दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, ओके, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं सर। अल्फा इज करंट गेन इन कॉमन बेस, हाँ, and beta is current gain in common emitter. Yes. Okay, sir. Now, सर 1 प्लस बीटा तो 1 बाई अल्फा आ रहा है, नहीं आएगा, सही चेक करके देखो। और ये तो 1 बाई 1 माइनस अल्फा है। तो 1 माइनस अल्फा को लिखा है बीटा प्लस 1, तो बीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस 1, ओके, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा सही था, बीटा, ठीक है। चला ये चेक कर लेना, सही है ये, बीटा इज करंट गेन का सर अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 और बीटा का क्या था सर? वो ज्यादा है, ओके, उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1। ग्रेटर तो 1 नहीं बोलेंगे, बहुत हाई है, मतलब बहुत ज्यादा, 1 से तो बहुत ज्यादा है, ओके, 100 to 500 बोल दिया मैंने, 50 भी देते हैं क्वेश्चन में, 50, 100, 500, वो ज्यादा, बहुत कंपैरेटिवली दिस 1 इज वेरी हाई, ओके। नाउ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सर ये लेस देन और ग्रेटर देन आदमी इस इक्वेशन से निकालता है ना, IB प्लस IC इक्वल्स टू IE देखकर। भी आपको पता होना चाहिए ना, आपका IB जो होता है, IB माइक्रो एम्पियर्स में होता है, वो माइक्रो मिली एम्पियर्स में होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। आपका जो सारा फ्रैक्शन है, जो मैं करंट भेज रहा हूँ, वो सारा तो IC बन रहा है ना, ठीक है। 100 भेज रहा हूँ तो वो मेरा वहां चला जा रहा है, 98 वहां चला जा रहा है, 0.2 इधर जा रहा है, ओके। तो 0.98 डिवाइड बाय 0.2 कितना आएगा? कम आएगा, 50 के आसपास आएगा, ठीक, कितना आएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट ये इतनी रेंज में होता है, ठीक है। सो नाउ CB कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है? दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक तो होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स,
ओके, और एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ओके, इनपुट वोल्टेज, ओके ओके, वर्स इनपुट वोल्टेज टू इनपुट करंट, रेशियो, ओके, कीपिंग V output कांस्टेंट। ओके, सो जो इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट का रेशियो है, रेजिस्टेंस है, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? योर आउटपुट करंट डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट, इनमें जो ग्राफ होता है, ओके, वर्सेस, बटे मतलब रेशियो होता है वर्सेस ग्राफ। ओके, कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने लिया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज माय एन, दिस इज माय पी एंड दिस इज माय एन। ओके, सो आई एम अप्लाइंग हियर forward bias, that's mean ये negative, ये positive. Okay, here I am applying this reverse bias, that means this is my positive, this is my negative. Okay, so this is my VCB and this is my VEB. Okay, so and this is my current IE flowing. Okay, so the I is my input current. Okay, so the graph between VEB and IE, input voltage और जो इनपुट करंट में जो ग्राफ है उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कीपिंग VCB आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। कहने का मतलब है, अगर मैं VCB को कांस्टेंट रख के VEB और IB में ग्राफ प्लॉट करूं, ओके, दैट विल बी माय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैसा ग्राफ आएगा? इफ आई एम प्लॉटिंग इनपुट करंट IE, ओके, वर्सेस VEB, तो VEB नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ VBE में। ओके, क्लियर है? VEB आपका नेगेटिव है, उसको मैंने VBE कर दिया। VEB का मतलब क्या है? VEB का मतलब है VE माइनस VB। ओके, वोल्टेज विथ ऑफ एमीटर विथ रिस्पेक्ट टू बेस, मैं वेरी कर रहा हूँ यहाँ से, वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया उल्टा VBE, दैट मींस VB माइनस VE। सो ग्राफ कैसा आएगा? दिस ग्राफ विल कम दिस वे, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कीपिंग VCB कांस्टेंट। सपोज मेरा VCB का वैल्यू है अभी 1 वोल्ट। ओके, VCB तो पॉजिटिव ही है। सिमिलरली अगर मैं इसको और VCB को और वैल्यू दे दूं, 2 वोल्ट्स दे दूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव सर, ये क्या कैसे देख रहे हैं सर? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये क्या कर रहा है अभी? ये V भी नेगेटिव था, सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जो ये हाँ, नेगेटिव, अच्छा हाँ, ये नेगेटिव, अच्छा ओके सर। VEB, ठीक है। सो now if I apply VCB 1 volt, okay, so this is my VCB equal to 2 volts. Okay, similarly VCB equal to 3 volts. So if I plot output VCB keeping constant between graph between I and VB, that is called your input characteristics. Okay, और इस input characteristics से we can calculate input resistance. Okay, so input resistance कैसे calculate करेंगे? This is my graph. Okay, this is my IE, this is my VBE. Okay, so I take 2 points here, 2 points here, and this is here. Okay, so the ratio input resistance in common base configuration is given by कितना आएगा? डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IE. Okay, keeping VCB constant. Okay, VCB equal to constant. This is called my input resistance. ये क्लियर है? यस सर। सर इसमें पता नहीं क्या कट ऑफ वोल्टेज, नी वोल्टेज, ये सब भी आता है। वो तो सेम ही होता है, कट ऑफ वोल्टेज तो
जहाँ पे करंट शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज कट ऑफ वोल्टेज। ओके, मतलब सर कट ऑफ वोल्टेज इज नथिंग, जहां से करंट शुरू होता है उसको कट ऑफ वोल्टेज कट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और सर सैचुरेशन रीजन क्या होता है फिर? अभी बता रहे हैं, अभी अब आ रहे हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, नाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, you keep input current constant, okay, and plot the graph between output voltage, that is VCB versus IC. okay, so now VCB पॉजिटिव है। okay, पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स बायस है। ठीक है, इसको माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाय तो पॉजिटिव है वो तो ये बड़े तो सर वाले ये से तो दिख रिवर्स रहा है बायस में कि है। फॉरवर्ड बायस है। ये अभी तो रिवर्स बायस है। इसको अगर मैं यहाँ कर उसको उल्टा कर दूं, ठीक है, सर ये तो फॉरवर्ड बायस हो रिवर्स हो जाएगा। जाएगा। तो मैं अभी इसको प्लॉट कर रहा हूँ उल्टे से। ठीक है, दिस इज माय, now what I'm keeping input current constant, that is I'm keeping my IE constant. okay, so जैसे this is IE 0, अगर IE 0 है तो जो IC आता है उसको क्या बोलते हैं, जब मेरा रिवर्स IE सैचुरेशन करंट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो IC है that is what रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, उसके बाद मैं IE को वैल्यू दे रहा हूँ 1 मिली एम्पियर। ओके, this is for IE equal to 2 milliampere. I'm keeping IE constant. I'm plotting graph between IC and VCB. Okay, so this is IE 5 milliampere. Okay, for IE 5 constant, this is IC. This graph is IC. Okay, and say this is IE. This is IC graph for equal to 10 milliampere. Okay, so ये क्या है, IC का ग्राफ है और IE IC ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, तो मेरा जो IE होगा वो यहीं पे होगा। दिस इज माय IE फॉर दिस कर्व, दिस इज माय IE। ओके, इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। हाँ सर एक बार फिर से बताइएगा, ये आपने आईसी कैसे लिया है? अच्छा हाँ ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ बीईबी को घुमा के वोल्टेज एक्सपेरिमेंट तो करते हैं लेबोरेटरी में, इस पे ट्रांजिस्टर के, इसको वेरी करके मैंने आई का वैल्यू फिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने इसको घुमाया, इसको वोल्टेज वेरी किया और करंट को मेजर किया, वीसीबी को मॉनिटर करके, वीसीबी को चेंज करके मैंने आईसी मेजर किया, तो मेरा ये ग्राफ आ गया। ठीक है सारे, और हमको सब पता ही है कि हमारा जो आई आईसी बराबर ही होता है, तो अगर ये आईसी है तो ये आई हो जाएगा, ये आईसी तो आई हो जाएगा। जो मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल 10 मिली एम्पियर, एक्चुअली ये है, तो आईसी कितना होगा 9.8 होगा। ओके, ये 4.8 4.9 4.9 होगा। ठीक है, so this region is called your active region। ओके, मतलब ऊपर वाला रीजन सर, आई के ऊपर वाला नहीं, ये कांस्टेंट रीजन, जहाँ पे ये कांस्टेंट है पूरा, जहाँ पर ये आपकी करंट कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है मतलब आपका जो कर्व है जहां पर, ओके, योर आउटपुट करंट इज डिटरमाइंड बाय योर इनपुट करंट। अभी ये जितना है आई कांस्टेंट है तो आपका आईसी भी कांस्टेंट हो गया। ओके, तो आपका जो ये करंट है वो मेनली डिटरमाइंड बाय योर इनपुट करंट। ओके, सो दैट रीजन इज कॉल्ड योर एक्टिव रीजन। ओके, so why it is called active region sir? ओके, सो यहाँ पर जो आपका जो इनपुट करंट है, ओके, दैट इज स्लोली डिफाइंड बाय योर इनपुट करंट। ओके, आपका जो आउटपुट करंट है वो सिर्फ इनपुट करंट पर डिपेंड करता है। ओके, दिस रीजन इज कॉल्ड योर एक्टिव रीजन। ओके, और इसी रीजन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए एम्पलीफायर काम करता है। ठीक है, अभी सैचुरेशन रीजन क्या होता है, ये क्या है, ये क्या रिवर्स है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है। जब इसको फॉरवर्ड किया, इसको रिवर्स किया यहाँ से 0 से, तो मुझे ये कर्व मिला, तो ये क्या होता है, एक्टिव रीजन होता है। ओके, एफ आर बायसिंग मतलब मैंने कुछ पॉजिटिव आई दिया, एमिटर करंट दिया, यहाँ पॉजिटिव किया, यहाँ मैंने रिवर्स अप्लाई एफ आर बायसिंग, तो उससे जो रीजन मिला दैट इज व्हाट, एक्टिव रीजन। फिर यहाँ पर क्या है, इस रीजन में क्या है, सर ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड दोनों एफ एफ। यस सर, ये तो मैं करंट दे ही रहा हूँ, सैचुरेशन रीजन। ये तो करंट कह ही रहा हूँ,
और ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं भी इसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। नेगेटिव में क्या मतलब फॉरवर्ड हो गया, इसको नेगेटिव में फॉरवर्ड हो गया। तो ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड योर सैचुरेशन रीजन। ओके, तो इसमें आपका तो आई तो कांस्टेंट है, लेकिन आईसी चेंज हो रहा है। ओके, तो इस रीजन में आपका ट्रांजिस्टर जो है वो इट विल एक्ट एज ए स्विचिंग सर्किट में स्विच ऑन। ओके, जब करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, अब इसमें देखेंगे कैसे काम करता है। दिस इज सैचुरेशन रीजन, स्विच ऑन। और यहाँ पर ये क्या है, आई 0 है, आई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आईसी नेग्लिजिबल है, दैट मींस जीरो करंट, दैट इज योर स्विच ऑफ, दैट इज दिस रीजन, इसके नीचे का रीजन, दैट इज कॉल्ड योर कट ऑफ रीजन। ठीक है, क्लियर है अभी क्या होता है एक्टिव रीजन? ओके, एक्टिव रीजन में एक बार एक्टिव रीजन मींस फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड रिवर्स में जो रीजन आएगा दैट इज कॉल्ड योर एक्टिव रीजन। ओके, यहाँ पर करंट, यहाँ पे आउटपुट करंट इनपुट करंट एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब एक्टिव रीजन जहाँ से सैचुरेशन स्टार्ट हो गया उसको हाँ, एक्टिव वो हाँ, रीजन। नाम उल्टा है, ठीक है, सैचुरेशन नहीं है वो, सैचुरेशन नाम सॉरी, एक्टिव रीजन कहते हैं। ये एक्टिव रीजन है, ठीक है, ठीक है, ये एक्टिव, ये नेगेटिव में फॉरवर्ड हो जा रहा है तो सैचुरेशन रीजन कहते हैं। ये वाला हाँ, ये सैचुरेशन ओके रीजन है, सर। ये सैचुरेशन रीजन है, ठीक है। अच्छा सर। और ये जो आई इक्वल टू की नीचे का जो रीजन है, जहां पर कट आपको ऑफ रीजन। आईसी मिल नहीं रहा है, आईसी नेग्लिजिबल, दैट इज कॉल्ड योर कट ऑफ रीजन। ओके, अच्छा अब अच्छा सर, वाइवा में टीचर्स लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव रीजन। किसको? तो ये जो एक्टिव रीजन है तो पूछते हैं व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव रीजन, तो इसका क्या आंसर होगा सर? एक्टिव रीजन मतलब ये एम्पलीफायर के लिए एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर यू कैन एम्पलीफाई योर सिग्नल। ओके, अब वो सर कट ऑफ सर हाँ। एक्टिव रीजन मतलब हमारा जो करंट है वो कांस्टेंट रहेगी ना? हाँ, यस, ओके सर। ओके। और अच्छा, सैचुरेशन रीजन में हमारा जो वर्क होगा वो आईसी के साइड, मतलब इधर की साइड होगा, इधर जो बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है ना, आप उसको वीसीबी चेंज कर रहे हो, नेगेटिव से, तो करंट भी बढ़ रहा है, आपका आईसी भी चेंज हो रहा है। ओके सर, ओके, ठीक है। सो दिस इज योर सैचुरेशन एक्टिव। अभी इस सर्किट में देखिए, बताओ इसमें आउटपुट इम्पीडेंस ज्यादा है कि कम है? कम है सर। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डेल्टा बीसी बाई डेल्टा आईसी। डेल्टा वी बाई आई निकालते हैं। तो जैसे ये ग्राफ है, सबसे ये ग्राफ ए, ये बी, ये सी, इसमें से सबसे रेजिस्टेंस किसका है? सर सी का। सी का सबसे रेजिस्टेंस है ना? यस सर। तो ये क्या है? क्योंकि स्लोप ज्यादा है सी का। स्लोप ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये ग्राफ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। यस सर। यस सर। तो इसी ग्राफ को मैं उल्टा प्लॉट कर दूं, आई वी, तो ये नहीं आ जाएगा? अच्छा, यस सर। क्लियर? यस सर। तो वो जो स्ट्रेट बोलते हैं, उसका फंडामेंटल क्या है? स्ट्रेट है मतलब क्या है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ रिवर्स बायस, एक जगह रिवर्स आउटपुट में रिवर्स बायस है, इनपुट में फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। और आउटपुट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनपुट का रेजिस्टेंस हम देखा बहुत कम आता है, आउटपुट का रेजिस्टेंस का स्लोप देखो बहुत ज्यादा है। दैट मीन रेजिस्टेंस, इनपुट में रेजिस्टेंस कम है, आउटपुट में रेजिस्टेंस का है। दैट मीन अगर आप सिग्नल अप्लाई करोगे तो आपको आईसी ऑलमोस्ट सेम ही है, पर रेजिस्टेंस आउटपुट का बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स नाउ यू कैन एम्पलीफाई योर सिग्नल, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया? आईसीआर आउटपुट ज्यादा हो गया। दैट मीन्स प्रिंसिपली नाउ यू कैन अप्लाई इनपुट सिग्नल, एनी सिग्नल टू इनपुट, you can get amplified signal of that signal at output. Okay, that is mainly basics of amplifier. Okay, so सर ये वाला पॉइंट थोड़ा एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, हाउ इट इज बीइंग एम्पलीफाइड। भी ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। यस सर। ट्रांसफर रेजिस्टेंस मतलब इनपुट का रेजिस्टेंस कम है, आउटपुट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। ओके सर। तो यही एम्पलीफिकेशन का बेसिक फंडामेंटल होता है। आप इनपुट से शुरू करो, इनपुट में रेजिस्टेंस कम है, आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बस वही एम्पलीफायर है। अब जब कराएंगे उसमें भी देख लेना एक बार, फिर जब वो एज एम्पलीफाई कराएंगे ट्रांजिस्टर। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर।
Okay, yes, so I'm ending class here. Tomorrow we'll see what is common emitter configuration, then common collector configuration, और फिर इनमें difference क्या है, okay, इनका comparison, and then see. सर ये एम्पलीफिकेशन में आउटपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस. यस. तो सर ये चीज कैसे, मतलब इसके पीछे का क्या लॉजिक है सर? अब अगर मैंने सेम करंट फ्लो किया इनपुट में तो वोल्टेज कम, वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, IR कम होगा, V equals to IR. यस सर. ठीक है रजिस्टर में, और वही करंट, सेम करंट वहां पे आ रहा है आउटपुट में, तो कितना होगा, वोल्टेज ज्यादा नहीं हो जाएगा? V इक्वल टू IR, फिर करंट तो सेम ही आ रहा है ना, आपका I आ रहा है, IC आ रहा है. यस सर. वो तो सेम ही आ रहा है. यस सर. तो करंट सेम आ रहा है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो ओ आउटपुट का रेजिस्टेंस जा रहा है तो वोल्टेज ज्यादा. ओके सर. थैंक यू 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 सर.